Okay, join your hands, close your eyes, chant Omkar 3 times. Om. 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 Sairam. So we are discussing general and we are solving some questions of general. So first of all, if you have any doubt in any entry or any transaction, you can ask. If you have tried and found some difficulties, you can ask. Sairam. Yes, Prakar. सर Yes, please, Sumam. सर बॉट पोस्टेज स्टैम्प सर इसकी क्या होगी? Postage stamp, postal expenses account debit to cash account. If it is paid in cash, है ना? Postal expenses account debit to cash account. Okay. Anyone else? So, Yes, please. salary is due to clerks. This is the outstanding salary, है ना? We have written the entries for outstanding expenses, है ना? In adjustment entries, we have written what entries are to be passed for outstanding expenses. So salary account debit to outstanding salary account, है ना? This is the outstanding salary. That means due but not paid. है ना? It has become due, but it is not yet paid, so it's outstanding salary. And entry will be salary account debit to outstanding salary account. Okay. Okay. Anyone else? Anyone else want to ask something? Any doubt? Sir, Yes. sir, received cash from Nitish, discount allowed. So cash is coming. So cash account debit. Discount allowed is a loss or expense. So discount account debit to Nitish. है ना? Whatever cash is received, that will go to the cash account. Amount of discount will go to the discount account, and total amount will be credited to Nitish. So cash account debit, discount account debit to Nitish. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. हाँ कुशाग्र साईराम कुशाग्र की आवाज नहीं आती आजकल क्या हो गया कुशाग्र साईराम कुशाग्र कुछ बोलता नहीं कुशाग्र व्हाट हैपेंड साईराम कुशाग्र कैन यू हियर मी सर उसका बैकएंड और स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक करा ले बेटा ना पूछा कर कुछ पूछना होता है ऐसे कैसे काम चलेगा ओके Sir, हाँ जी interest due but not received. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है ना Yes, sir. दिस इज द एक्रूड इनकम है ना इंटरेस्ट इज द इनकम हियर इनकम है ना वी हैव टू रिसीव इट सो इट इज इनकम interest may be both interest may be expense as well it may be income if we have to pay it is an expense but here we have to receive it has become due but not yet received so it is the accrued income earned but not received है ना हमने पैसा Yes, कमा sir. लिया काम कर दिया लेकिन मिला नहीं है पैसा तो इनकम तो है तो क्रेडिट होगा तो accrued income account debit to what is the income what is the name interest है ना accrued interest account debit to interest account है ना and it will be Yes, sir. accrued interest account debit to interest account okay सर okay anyone else सर okay yes please सर चेक गिवन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम this is check paid by bank sorry insurance premium paid by bank or insurance premium paid by check so insurance premium is the expense no so insurance premium account debit to bank account it's paid by check so its bank account will be credited so insurance premium account debit to bank account okay
Is it clear, Shivam? Yes, sir. Okay. Anyone else? Aditi, Soni, Anuj Singhal. Anuj have not asked yet anything to me. No, Anuj, are you there? Anuj Singhal. Okay. Bhumi Jain, Chaitanya Sahu, Bhumi Jain. Sir. Yes, please. Yes, now. Yes, ask, please. Sir, when is discount account debited and credited? Which account? Discount account. If we are allowing discount, then discount account will be debited, है ना? Okay. When we make payment, suppose when we make payment, then we allow discount. Sorry, Yes, sir. when we receive payment, we allow discount. है ना? Someone has paid money to us, then we allow the discount. So cash is coming and discount is allowed. And when we make payment, at that time we receive discount, so discount account is credited. Okay, Okay, sir. Thank you, sir. welcome. Divya Kaka has not yet asked anything to me. Divya, how are you, Divya? Divya, are you there? गुड Divya, कैसी हो? अच्छी हूँ ठीक है, कुछ पूछा नहीं दिव्या ने आज तक कभी. दिव्या, आर यू स्टडिंग और नॉट? यस सर पढ़ाई वढ़ाई करती है कि नहीं घर पे? यस सर कोई डाउट नहीं आता कुछ भी? राम, यू डोंट हैव एनी डाउट? अच्छा, जो कुछ पूछते नहीं है उसकी 3 सिचुएशन बताता हूँ आपको. There are 3 possibilities if you don't ask anything to the teacher or to me. That is, number 1, you have understood everything perfectly well and you don't have any doubts. Is it possible? Sairam, if this is the situation, this is the best situation. But is it possible? Sairam, Sairam, sorry. Sairam. So is it possible what I am asking? No, sir. Okay, so this is not possible. Second thing is that you fear to ask the question to the teacher, or what my friends will say that she or he does not know even this much. है ना? थोड़ा डर लगता है कि ये मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो लोग क्या सोचेंगे. I am, है ना, image conscious person, so I can't ask. This will somewhere hurt my image. कुछ मेरी इमेज में फर्क पड़ेगा इससे अगर मैं पूछूंगा तो. राम, is this the case? ऐसा है क्या? No, sir. Okay, so it is not a matter of image or anything. You are a student and you have full right to ask the questions and you must ask whenever you have any doubts, है ना? अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए उसको. That is your right to ask the questions to the teacher, clear your doubts. That is your right. ठीक है? तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको पूछना चाहिए. थर्ड इक्वेशन और मैं एक बताता हूँ बच्चों को. और वो थर्ड इक्वेशन ये है कि जो the teacher knows nothing, so what should I ask to him? टीचर को तो कुछ आता नहीं तो मैं क्या पूछूं उससे, क्या डाउट क्लियर करूं? So that may be a third equation. So some of you may be of this impression that what to ask to the teacher. Sairam, हाँ, किसी को लगता है क्या ऐसा? He or she may be true also. I'm not saying he or she is wrong, totally wrong. किसी को ऐसा लगता है क्या? No, sir. No, sir. Sairam, No, sir. किसी को नहीं लगता ऐसा? किसी ना किसी को तो लगता होगा. पूरी क्लास में एक आध तो होता ही है जिसका ऐसा लगता है. कोई नहीं ऐसा? Okay, so that's all. So important thing is what to do. सर, हाँ जी, हाँ, पूरी बोलो. सर एक है कार की क्या होगी एंट्री? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, पूरी दोबारा बोलो, फिक्स थोड़ा. सर कार्टेज पेड The cartage. Do you understand cartage? What is the meaning of cartage? Do you understand cartage? नो सर.
कांटे जो सामान लाने के लिए गाड़ी बढ़ा देते हैं ना, छोटा मोटा उसमें रख के लाते हैं, हाथ ठेले में रख के लाए, वो सामान ले आए, है ना। अंबाली। नहीं, हमारे नहीं, सामान गाड़ी भाड़ा, छोटी गाड़ी का जो भाड़ा होता है ना, उसको कार्टेज अकाउंट डेबिट करिए, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इट्स एन एक्सपेंस, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, है ना। ओके, Yes, sir. Sir, नाउ yes please, if you want to ask anything you can ask. a check for rupees 5,000 received from Rajiv was deposited into bank, returned dishonored. Okay, it is read again, Aditi, again read it. A check of rupees A check for rupees 5,000 received from 5,000. Your voice is not clear. I think this is a case of dishonor, है ना, so A far. check, हाँ, yes please. A check for rupees 5,000 a check for rupees 5,000 was deposited into bank, okay, returned okay. So we received a check from someone. I'm not able to hear the name of that person, whosoever is that, है ना. Earlier it was received, and it was earlier, you know, and we sent that check to the bank, deposited the check to the bank, but this is dishonored. So what entry we pass when we deposit the check? What entry do we pass when we receive a check and deposit it in the bank? Suppose check received from, Is it deposited on the same date or it is deposited on the same day. Now it's deposited on the same day. You know? So what will be the entry? sir bank account Bank debit account to debit. Okay, so now reverse this entry. It is dishonored, so reverse this entry. What will be the entry? Customer customer or creditor's account debit. Okay, customer or debtor's account, not creditor, है ना. We are receiving, हाँ, creditor होगा, sorry. No, we receive check from debtor, not creditor, है ना. Customer or debtor's account debit to bank account, है ना. Yes, That sir. entry will be reversed. So whatever is the name, we write the name of that person, debit to bank account. It means that that amount did not reach to the bank. Bank had not received the amount, and we still have to receive money from that person, है ना. So again, he has been debited. He is still our debtor, and we have to still receive money from him. Okay, so this is the dishonor entry. सर तो इसमें डिपॉजिट का ट्रांजैक्शन नहीं आएगा. वो पहले हो चुका होगा ना, बहुत रिसीव्ड है ना पहले से, है ना. या तो आपको सीक्वेंस में दिया वो डेट वाइज की, आज चेक मिला, डिपॉजिट किया, है ना. So here he is only asking for dishonor entry. Yes, sir. It was received, it is a past transaction, somewhere it has been received in the past, now it has been dishonored. We have to pass only dishonor entry. Okay. Okay. Anyone else want to ask anything? और Sir. किसी को पूछना है? आप पूछो, क्या आंसर? सर ये डिसऑनर्ड वाली एंट्री में कभी बैंक चार्ज भी करता है? डिसऑनर वाली एंट्री बैंक चार्ज करता है. डिसऑनर में तो चार्ज नहीं करेगा, उसमें क्या चार्ज है, उसको कुछ दिया ही नहीं, उसने चार्ज करेगा. सर जैसे चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक चार्ज लगाता है ना? चेक बाउंस होने पे बैंक चार्ज लगाता है, ऐसा क्या? हाँ सर एक ऐसा तो मैंने एंट्री नहीं, ऐसा था एंट्री में. एंट्री बताओ मुझे. सर ढूंढ के बताता हूँ. हाँ, ढूंढ के बताना मुझे ना, अगर मिलती है तो बताओ, अच्छी बात है, अगर यस ऐसा सर. करेंगे तो. ओके, नाउ so I thought that in this way one day we will fix for this, है ना. It is very important for doubt clearing or for answering, है ना. so हम ऐसा करेंगे कि एक क्लास कभी ऐसा रखा करेंगे जिसमें आपके जो डाउट है, वैसे तो आप कभी भी पूछ सकते हो, at any time you can ask your doubts, in every class you can ask, but still if you want a specific time we can fix a specific day for this clearing of doubts, है ना. Okay, so now you note some transactions, then we will discuss solve them. कुछ लिखिए आप लोग, ट्रांजेक्शन लिखिए, पास द एंट्रीज फॉर देम. ओके, आर यू राइटिंग? यस सर. Okay. So let me share, then I will also write, so you can, it will be better to see. Chrome tab. Okay, share. Okay, I have come here. I don't need its content, I need only whiteboard. Whiteboard is here. What happened to the whiteboard? Okay, come. Why are you angry? Yes, no angry.
Okay, I want to create new and I want text. Correct. Again, you are asking, I have said I want new and I want text and text is here. Okay. Okay, now you can see. Item. Sairam sir. Sharon. Is it visible? The screen is Yes, visible or sir. not? Yes, sir. Is it readable? Yes, sir. Okay, so this transaction number one, you write. Let us write 2020 January 15. Or leave the date. Date will take a lot of time, so we are not writing the date. We are writing ABCD 1, 2, 3 like that. Transaction number one. Write goods costing rupees 50,000 lost by fire and insurance company accepted a claim only for rupees 42,000. This is the first transaction. Is it clear? Goods costing rupees 50,000 lost by fire and insurance company accepted a claim only for rupees 42,000. Okay. Second transaction, goods costing rupees 40,000 purchased from Aditya and half payment is made by a check and 30% payment was made in cash. Transaction number 3. Goods for rupees 60,000 sold to Shivam at 10% trade discount and 5% cash discount. Shivam paid 40% amount by a check. Okay. So let us first solve the three problems. ये three transaction करते हैं हम लोग पहले. First one is goods costing rupees 50,000 lost by fire and insurance company paid a claim, accepted a claim, not paid a claim, accepted a claim for rupees 42,000.
Hey Ram, are you there? Yes, sir. So now this is what transaction. Who can pass the entry for this transaction? Any of you can pass the entry for first one. नीचे साइन इन करना वो एंटर दबा देती है तो वो साइन इन Hello. Is it visible or not? Sir, visible. यस सर विजिबल Yes. अब बताओ वर्षा क्या एंट्री होगी इसकी? वर्षा will tell the entry for the first transaction. सर Yes. मैं बताऊं हाँ बताइए बताइए. Good. सर इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट Hmm. Okay. Good. Anyone else? सही है कि नहीं सही तो है क्या बोल वो आई थी ना Sir, मैं आई Yes, please. पेन देना मेरा Okay. So let us see what happened here. Goods costing rupees lost, costing rupees 50,000 lost by fire. Okay. Out of which insurance company accepted a claim for rupees 42,000. Yes, please. ये पूरी माइक में डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ बेटा किसी का माइक खुला बंद करो. Someone's mic is on. Okay. So see what is happening. There was a loss of rupees 50,000, but out of this insurance company has accepted a claim but not yet paid. इंश्योरेंस कंपनी ने अभी क्लेम एक्सेप्ट किया है, पेमेंट नहीं किया है ना, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी हैज बिकम अवर डेब्टर. इंश्योरेंस कंपनी डेबिट बिकॉज वी हैव टू रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी द क्लेम अमाउंट विच इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड. इज इट क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम फॉर 42,000 है ना. नाउ out of 50,000 insurance company accepted the claim of only 42,000, so there is a net loss of rupees 8,000 है ना. So loss by fire account or loss of stock by fire account, whatever you want to write, you can write. Loss of stock by fire account debit या loss by fire account debit. Loss by fire account debit. How much loss is there? Net loss 8,000. Okay. Two total goods lost. Two purchase account. Okay. Being goods lost by fire. Yes. सर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया होता तो क्रेडिट होता वो. नहीं तो बैंक अकाउंट करते हैं आप. बैंक अकाउंट डेबिट अगर एक सिंगल एंट्री है तो है ना. बैंक अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ठीक है. अगर पेमेंट कर दिया होता तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 8,000 टू परचेज अकाउंट है ना. बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड पार्शियल क्लेम. फुल क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया उसने. इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड पार्शियल क्लेम. ठीक है. बेसिकली दिया थ्री ट्रांजेक्शंस. इसमें कितने ट्रांजेक्शन समझिए आप. पहले सपोज फर्स्ट डे क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है सारा काम एक ही दिन में हुआ होगा? तो पहला इवेंट क्या हुआ होगा? फर्स्ट इवेंट क्या हुआ होगा बताइए, इमेजिन करिए. गुड्स पहले तो परचेज. नहीं परचेज तो हो गया होगा. परचेज के बाद ही तो लॉस हुआ. परचेज को छोड़ दो. परचेज के बाद क्या हुआ इस इंसिडेंट में? सर लॉस पहले तो लॉस बाय है ना, लॉस बाय फायर हुआ होगा डेफिनेटली है ना. अब ऐसा तो नहीं इंश्योरेंस कंपनी और हमारे देश का सिस्टम की अभी अभी लॉस हुआ और अभी तुरंत इंश्योरेंस कंपनी ने 2 मिनट में आके एक्सेप्ट कर लिया. टेक्स टाइम है ना, वीक्स टाइम और मंथ्स टाइम सम टाइम्स है ना. सो व्हाट प्रैक्टिकली वुड हैव हैपेंड, तो फर्स्ट इवेंट हुआ होगा हमारे पास क्या, लॉस बाय फायर है ना. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट
दिस इज टू एक्सप्लेन फॉर यू, है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। टू, जब लॉस बाई फायर किसका हुआ, गुड्स का हुआ है, जब गुड्स का लॉस होगा तो क्रेडिट करेंगे किस कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ये हुआ होगा। अब जब लॉस हो गया और आपने इंश्योरेंस कराया तो क्या करोगे आप? अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, इसका मतलब क्या कि दीज आर गुड्स, दीज गुड्स आर इंश्योर्ड गुड्स, है ना। इंश्योरेंस कराया हुआ है तभी तो आपने क्लेम किया इसका। तो इंश्योर्ड गुड्स है तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो अगर लॉस हो गया फायर से तो हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि अवर लॉस, पे अवर कंपनसेशन फॉर द लॉस, है ना। सो वी विल मेक ए क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी। हम क्या एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं किया 50,000 का एक्सेप्ट, उसने तो एक्सेप्ट किया 42,000 का, तो 42,000 का हम एंट्री कर दी, क्लेम एक्सेप्ट किया इतने से, 42,000 का उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको 42,000 दे देंगे, ठीक है। तो अब हमारा लॉस कितना हो गया, 8,000। है ना। तो यहाँ देखो आपने क्या किया, लॉस बाई फायर डेबिट किया 50,000 से, और यहाँ पर लॉस बाई फायर क्रेडिट किया कितने से, सही राम? 42। 8,000 अभी बैलेंस है इसमें, किस अकाउंट में बैलेंस है 8,000? लॉस बाई फायर में, है ना। तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट ठीक है ना, 8,000, हमारा 8,000 बच गए। लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, इसको अल्टीमेटली जो लॉस होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। हमको लॉस, नेट लॉस जो हो गया वो हो गया 8,000 का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 8,000 का। अब आप इसको क्रॉस करते जाओ, क्या हो गया देखो, ये है क्या क्रॉस करने का इसमें, पता नहीं। ये लॉस बाई फायर डेबिट किया 50,000 से, देखो यहाँ दिख रहा है सबको, और लॉस बाई फायर क्रेडिट किया 42,000 से, हमने उल्टा कर दिया इसको, ये एंट्री रिवर्स होगी, सॉरी, ये एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जाएगा ना, लॉस से क्रेडिट थोड़ी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लॉस बाई फायर हो जाएगा, लॉस बाई फायर, ओके अब सही है, ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। तो लॉस बाई फायर डेबिट हुआ 50,000 से, यहाँ पर क्रेडिट हो गया 42 से, यहाँ पर क्रेडिट हो गया 8,000 से, तो खत्म हो गया लॉस बाई फायर डेबिट क्रेडिट आर इक्वल। इंश्योरेंस क्लेम आपने डेबिट किया 42,000 से, क्रेडिट नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी को भी, नहीं किया ना इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट आ गया 42,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है 8,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस 8,000, टू परचेज अकाउंट 50,000। तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब अकाउंट क्लोज करेंगे तब एट द एंड ऑफ द ईयर इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड, तब तक हम इसको लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर अकाउंट में डेबिट करके रखते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो 42,000 तो हमको मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो लॉस है दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 8,000, एंड हमारा परचेज कम हो गया कितना, 50,000 का। तो दिस इन प्लेस ऑफ दीज 3 एंट्रीज वी पास दिस वन एंट्री। अब इसमें एक एंट्री और बढ़ सकती थी, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया होता तो क्या करते हैं आप, एंट्री यहाँ पर बैंक और कैश अकाउंट डेबिट $42,000 टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो फॉर अब इंश्योरेंस कंपनी डेबिटर नहीं बचेगी आपकी, उन्होंने आपको दे दिया 42,000, उनका हिसाब किताब क्लियर हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हुआ ऊपर देखो इस एंट्री में, और इस एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट हो गया। तो आपका बच क्या गया, कैश अकाउंट बच गया डेबिट में,
कैश अकाउंट डेबिट 42,000, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट 8,000, टू परचेज अकाउंट 50,000। तो यहाँ पर हम फिर इंश्योरेंस कंपनी की जगह क्या कर देते हैं इसमें, इन प्लेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इट विल बी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगर उसका पेमेंट कर दिया तो। अगर पेमेंट नहीं किया तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, और पेमेंट कर दिया तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। इफ वी हैव टू पास वन सिंगल एंट्री ऑन सिंगल डेट, अगर डेट अलग अलग दिए तो आपको फिर अलग अलग स्टेप में डिफरेंट एंट्रीज करनी पड़ेंगी। साईराम, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? I think this all everything is clear about loss by fire in this entry. अगर इंश्योरेंस नहीं होता सपोज करो तो क्या करते हैं, सिंपली इंश्योरेंस नहीं होता तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। इंश्योरेंस है नहीं तो क्लेम करने का सब झंझट ही नहीं, आगे कुछ है होगा ही नहीं, तो सिंपली लॉस हो गया पूरा, तो पूरा एंट्री करेंगे लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चाहे एक दिन की बात करो चाहे बाद में करो, एक ही एंट्री होगी उसमें, तो अगर इंश्योरेंस नहीं है तो। ठीक है, ओके। अब ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी, अब सेकंड एंट्री की बात करते हैं, सेकंड ट्रांजेक्शन। अब अगला ट्रांजेक्शन है वो है ये गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 परचेज फ्रॉम आदित्य एंड हाफ पेमेंट इज मेड बाई चेक एंड 30% पेमेंट इज मेड इन कैश। ओके, कौन बताएगा ये जो कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है, कौन बताएगा? सर सर कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजेक्शन, ओके। Sir, cash सर transaction. आधा कैश है आधा क्रेडिट है। आधा कैश है आधा क्रेडिट है, ओके। और कोई? ऐसा आधा कैश बोलने की बजाय आधा क्रेडिट बोलने की वजह से बोलो कि कुछ कैश है कुछ क्रेडिट है ना, ज्यादा कैश है थोड़ा सा क्रेडिट है ना। देखो क्या हुआ, 40 ने कितना परसेंट, 50% पेमेंट तो किया उसने बैंक से चेक से, तो वो भी कैश हो गया एक तरह से, कैश पेमेंट कैश ट्रांजेक्शन है। 30% पेमेंट किया चेक में तो वो भी कैश ट्रांजेक्शन है, बच गया कितना 20%, वो क्रेडिट है। 20 क्या होगी देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, टू बैंक टू कैश टू आदित्य। कितने का परचेज किया, अमाउंट बोलो? 40,000। 40,000, ओके गुड। परचेज अकाउंट डेबिट 40,000, ओके गुड। अब जो पेमेंट चेक से किया वो आएगा टू बैंक अकाउंट। कितना परसेंट पेमेंट किया चेक से? सर 50%। 50%। तो इसका 40,000 का 50% कितना हो गया? 20,000। 20,000। अब पेमेंट किया कुछ कैश में, तो टू कैश अकाउंट, व्हाट परसेंटेज इज पेड इन कैश? 30% है ना, 30% ऑफ 40,000, दैट मीन्स 12,000 पेड इन कैश। ठीक है, अब बच गया कितना, 20%। बचा हुआ है दोनों को ऐड करके उससे माइनस कर दो, या कुछ भी कर सकते हो, या तो परसेंटेज निकाल लो। 50 प्लस 30 80% तो पेमेंट हो गया, 20% बचा, तो 40,000 का 20% 8,000 आएगा, है ना। या चाहो तो इन दोनों को ऐड किया तो 32,000, 40 से माइनस किया तो कितना बच गया, 8,000, तब भी 8,000 ही बचेगा। तो टू आदित्य, है ना, रिमेनिंग अमाउंट क्रेडिट परचेज विल बी credited to Aditya account 8,000. Goods purchase and okay.
पेमेंट्स मेड बट सम अमाउंट इज टू बी पेड। वो पूरा लिख सकते हैं, इतना परसेंट कैश से किया, इतना चेक से किया, दिस परसेंट अमाउंट इज टू बी पेड। ठीक है, अब अगला ट्रांजेक्शन। हाँ जी, सर ये 30% बचे हुए 50% का है या पूरे नहीं नहीं नहीं, पूरे का पेमेंट का निकालोगे जो। 30% है? हाँ, जो पूरा अमाउंट है उसका 30% है ना, टोटल 40,000 का 30%। ओके, अब देखो ये वाला यहाँ करते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन दिखेगा, मुझे साथ में समझ में आएगा क्या हो रहा है। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000 सोल्ड टू शिवम at 10% a discount and 5% cash discount and 40% amount paid by check। क्या करेंगे इसमें? इज इट ए कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन? राम, ये कैश है कि क्रेडिट है? बोलो। सर कैश एंड क्रेडिट। कैश एंड दोनों। क्रेडिट। 50% तो कैश है, 50% क्रेडिट है। इसके किस किस तरह से एंट्री कर सकते हैं, मैं सारे तरीके बता देता हूँ आपको। वॉट एवर मेथड यू विल यूज दैट बोथ विल बी करेक्ट, है ना। एक तरीका तो क्या बताता हूँ, पहला आपने पढ़ा है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पहली बात तो हम दोनों को सेपरेट ही कर लें, एक तरीका तो हमारे पास हो सकता है ना। इसको अगर टोटल अमाउंट को सेपरेट कर लें, किस किस को, 50% कैश है ना इसमें, नहीं 40% कैश है, तो 40% कैश वाला पार्ट कितना हो जाएगा? कैश ट्रांजेक्शन होगा हमारा 60,000 इंटू 40%, कितना आ गया? 24,000 का 24 तो कैश है हमारा, है ना। और इसका मतलब क्या, क्रेडिट कितना बच गया? 24 माइनस कर दो उससे, इससे 40 से, 60 से सॉरी, तो 36,000 का जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ये दो पार्ट में ट्रांसफर कर लिया आपने इसको। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो दो पार्ट में कर लिया। आप पहली बात क्या करना है, सबसे पहले आपको माइनस करना है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। टेन परसेंट, है ना। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम सबको देते हैं, चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट हो, दोनों को देते हैं ना। कितना माइनस हो गया? 2,400। यहाँ से माइनस होगा 10% इसका, 24,000 का 10% कितना है? 2,400। और यहाँ पर माइनस होगा 36,000 का 10% यानी 3,600। 3,600 ये माइनस हो गया, तो कितना बच गया? ये बचेगा आपका 21,600। और ये कितना बचा? 36 से 3,600 माइनस करो तो 32,400, है ना। 32,400 ये हो गया। अब माइनस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 5%। अब इसकी प्रॉब्लम है, इस पे तो हम कैश डिस्काउंट देंगे नहीं इस वाले ट्रांजेक्शन में, क्योंकि ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैश डिस्काउंट कहाँ देंगे, केवल इस पे देंगे। 32,400 का 5%, 3,240 उसका हाफ कर दीजिए तो 1,620, 5% निकाल लो, 1,620। इस पे हम कैश डिस्काउंट देंगे, उस पर तो देंगे नहीं। तो कितना बच गया अमाउंट? अमाउंट बच गया हमारे पास 31, सॉरी ये बचेगा 0,87, 30,780, 30,780 जो बच गया हमारे पास। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास ये है, आप दोनों को सेपरेट कर लो, शुरू से दोनों की सेपरेट एंट्री कर दो। एंट्री पहली क्या कर सकते हो आप? एंट्री पहली कर सकते हो ये वाली, इसके लिए
परचेज अकाउंट डेबिट टू एवं अमाउंट क्रेडिट वाला अमाउंट है 21,600 है ना, इसमें कोई डिस्काउंट की तो एंट्री होती नहीं है। 21,600 और दूसरी एंट्री कर सकते हो इसके लिए आप कैश वाले पार्ट के लिए परचेज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट आएगा 32,400 नेट अमाउंट जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया था, वो क्रेडिट डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया 32,400। हमने कैश पेमेंट किया 30,780 30,780 और डिस्काउंट मिला हमको, सॉरी डिस्काउंट मिल गया 1620। ठीक है, एक तरीके तो होगा, दो एंट्री सेपरेट कर लिया आपने, कैश के लिए अलग कर दिया, क्रेडिट के लिए अलग कर दिया। दूसरा तरीका हम लोग को दो एंट्री नहीं करना, एक ही करना चाहते हैं, दैट आल्सो यू कैन डू। पर एक ही एंट्री करेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए कैश अकाउंट डेबिट कितना कैश मिला आपको, कैलकुलेशन यही रहेगा, कोई कैलकुलेशन चेंज नहीं होगा। कैश अकाउंट डेबिट ये वाला अमाउंट 30,780। ठीक है, सॉरी सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट आएगा ये 60,000 का गुड है, 10% माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट तो 54,000। इन दोनों को ऐड करेंगे आप, कौन सा अमाउंट है 21,600 एंड 32,400, तो ये भी आ जाएगा 54,000 है ना, टोटल अमाउंट ऑफ परचेज, नेट अमाउंट ऑफ परचेज। अब इसमें से आएगा टू कैश अकाउंट, कैश पे किया हमने 30,780, डिस्काउंट अकाउंट डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट वो 1620 एंड टू शिवम, क्रेडिट वाला पार्ट है वो शिवम में आ जाएगा, टू शिवम 21,600 21,600। दिस ऑल्सो कैन बी डन, ये कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, और तीसरा कॉम्बिनेशन एक और कर सकते हैं। हाँ जी सर इसमें डिस्काउंट अलाउड होगा ना, क्योंकि गुड्स तो बेचा है सर, सेल्स अकाउंट है। भैया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, डोंट आस्क अगेन, डिस्काउंट अलाउड लिखो या डिस्काउंट लिखो, एक ही बात है। अगर वो क्रेडिट में आ रहा है तो बेचा है क्या हमने, यस सर। बेचा है, परचेज नहीं किया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सारी एंट्री परचेज बेचा की है। करी है, आप परचेज कर लो इसको, है ना, मैंने परचेज की एंट्री कर दी ना सारी। यस सर। तो आप परचेज या सेल्स करोगे तो रिवर्स हो जाएंगी सारी एंट्री, सॉरी पूरा गलत हो गया बेसिकली, है ना, ये परचेज की एंट्री करनी है। आप सेल्स का करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, है ना, ये कैश सब डेबिट, ये सब डेबिट में आ जाएंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये सारी चीजें डेबिट में आ जाएंगी तीनों, सिर्फ हम डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। मैंने उसको उसका मान के कर दिया, परचेज मान के कर दिया, बट प्रोसेस इज दिस। ठीक है सही राम। यस और सर। तीसरा तरीका हो सकता था कि अब इसको परचेज ही मान ले हम लोग, है ना, यहाँ परचेज कर देता हूँ, परचेज फ्रॉम से हम कर दिया, परचेज फ्रॉम शिवम। ठीक है, एंड शिवम पेड, यहाँ तो शिवम आ गया ना, इसलिए तो गड़बड़ हो गया ना, शिवम पेड एंड पेड टू शिवम।
एंड पेड टू शिवम, बस पेड 40% इतना ठीक है, एंड पेड अब परचेज की एंट्री हो गई है तो परचेज में होगा। तीसरी एंट्री हमारे पास हो सकती थी कि आप पहले पूरा क्रेडिट परचेज की एंट्री कर दो, कौन सी वाली, ये 54,000 से परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवम, ठीक है, और दूसरी एंट्री में ये वाला अमाउंट डाल दो, क्या, शिवम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ये भी कर सकते हो, तीनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। टाइम इज ओवर, वी विल डिस्कस, कंटिन्यू टू डिस्कस। आपको जो भी समझ में आता है इन दोनों में से तो आप जो ऑप्शन यूज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। इसकी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोग को भी, इस तरह के ट्रांजेक्शन देखना बुक में आपको मिलेंगे तो टू प्रैक्टिस दैम मोर। ओके, आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग।